Exam focused evening classes. Today we will be discussing the exam techniques and important topics of CFAP 3, which is Business Management Strategy. This session is being live webcasted on Facebook, and this session is available at other ICAP houses, Islamabad, Multan, Faisalabad, Peshawar, and obviously at Lahore. And for this session, we have the finest teacher of this subject with us. Please welcome Sir Atikur Rahman. Assalamu alaikum ji, good morning. Welcome aboard. Purpose of today's discussion is mainly threefold. Primarily, we are going to talk about the content of the subject as a whole, rightly starting from the first chapter, the areas of your study grid, and some of the key areas that require special attention. Secondly, we will be discussing the important parts, important topics, and important models regarding examination point of view, specifically for December 19 attempt. And third, we will be discussing some paper attempting techniques. What are the do's and don'ts in the examination? When you are there in your examination, how you should plan your write-up, what key areas you should be focusing on, and what are some aspects which you should be considerate about while attempting your paper. So we have these three objectives for today's discussion, and hopefully we will go through them one by one precisely. So first and foremost, we will start with an overarching view of the subject as a whole. Subject आपका 20 chapters पे और 5 parts पे मुश्तमिल है. There are like 5 broad areas, namely strategy formulation and strategy implementation, the first area, which is called as part A. Then we have part B, that is information technology, IT. Then there is part C, human resource management. And then there is part D, operations and supply chain, marketing and supply chain management. And then you have part E, ethics and CSR. So these are the key areas. And in these broad areas, you have various chapters divided. Part A being the lengthiest one. Part A जो है, that is the lengthiest one. And this part incorporates up to 35 to 40% of your examination. And this is the core of your subject, the word strategy. Strategy का जो area है, that is the core. And majority of the theories, models and frameworks are from this particular part. And secondly, this part has also an important bearing on the area of risk management, and this part has also some important bearing on the area of operations, performance measurement and strategy management. There are two important areas. One is performance measurement, and the other one is what we call as project management. So these two areas have not yet been tested thoroughly. Though performance measurement has been tested multiple times, performance measurement जो है वो test हो चुका है for multiple times, but the other area, that is project management, it has not yet been tested. So there is a probability, a high possibility, that examiner may go for project management this time. और इसके हवाले से we'll be having a quick overview of that. IT के ऊपर एक chapter है, only 10 chapter, information technology, and that one chapter contributes up to 15 to 20% of your examination. There is only one chapter of information technology, and that one chapter has a bearing of like around 15 to 20%. इसी तरह HR है, HR का आपके पास के 3 chapters हैं, 11 to 13th, और HR की जो पेपर में contribution है, that is also around 15 to 20%. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर वेट अ मिनट मैं फाइल एक ओपन करूँ.
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आपके पास रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है और परफॉर्मेंस अप्रेजल है। और इन 3 एरियाज़ में एग्ज़ामिनर जो है ये आपसे कम से कम 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पुट करता है। ऑपरेशंस, सप्लाई चेन एंड मार्केटिंग ये पार्ट डी है। इसके अंदर मेनली 2 चैप्टर्स आते हैं, 8th एंड 9th चैप्टर, और इसमें से 15 to 20 मार्क्स अगेन पेपर में पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो आखिरी इसमें एरिया है आपका, दैट इज़ एथिक्स एंड CSR। एथिक्स एंड CSR के अंदर लास्ट 3 चैप्टर्स हैं आपकी बुक के अंदर, चैप्टर नंबर 18th, 19th एंड 20th। 18th and 19th chapter are on ethics and 20th chapter is on CSR, corporate social responsibility, and collectively ये 3 chapters आपके एग्ज़ामिनेशन के अंदर 20% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। सो जो पहला पार्ट है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं, और उसके अंदर फर्स्ट 7 चैप्टर्स जो हैं दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द होल स्ट्रेटजी, जिसे हम स्ट्रेटिजिक मैनेजमेंट प्रोसेस भी कहते हैं। और ये एक पार्ट जो है ये पहले 7 चैप्टर जो हैं ये पेपर में कम से कम कोई 1, 2 या 3 क्वेश्चंस में कवर अप होते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स हैं, थेरीज़ हैं, फ्रेमवर्क्स हैं। इनफैक्ट अगर आप अपनी बुक को सम अप करें इन द कंटेंट ऑफ सम की एरियाज़ लाइक सम मॉडल्स, सम थेरीज़ एंड सम फ्रेमवर्क्स, तो यू वुड रियलाइज़ कि तकरीबन कोई 50% के करीब जो आपके डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं वो स्ट्रेटजी के एरिया के अंदर पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फ्रेमवर्क्स आर फाउंड इन द एरिया ऑफ स्ट्रेटजी। ठीक, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। पार्डन मी, लैपटॉप का कुछ इशू हो रहा है। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, और उसमें हम लोग सबसे पहले एक ओवरव्यू देखेंगे स्ट्रेटजी का। मैंने खुद बस 1 मिनट लैपटॉप ऑन होता है। So we have the first chapter, that is the overview of the word strategy. Strategy होती क्या है, strategy का concept क्या है, strategic management process, levels of strategy. It's quite an important chapter. Multiple times past papers में इसके ऊपर question appear हो चुका है, and examiner is quite concerned about testing scenario based questions from this part. पहले 7 chapters पेपर के अंदर जो scenario based content आता है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक एवरेज जो पेपर की डिवीजन होती है उसमें आपका अराउंड 40 to 45% जो कंटेंट है वो सिनेरियो बेस्ड होता है, और ऑलमोस्ट 50 to 55% कंटेंट जो है वो आपका नॉलेज बेस्ड होता है। उस 40 to 45% में से कम 80% ऑफ दैट 40%, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अराउंड 32 to 35 मार्क्स, ये पहले 7 चैप्टर्स में से कवर अप होते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी का जो पोर्शन है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसमें 3 पिलर्स हैं स्ट्रैटेजी के। द फर्स्ट पिलर इज़ स्ट्रैटेजी पोजीशन, द सेकंड पिलर इज़ स्ट्रैटेजी चॉइस, एंड द थर्ड पिलर इज़ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। ये 3 ब्रॉड पिलर्स हैं स्ट्रैटेजी के। पहले 5 चैप्टर्स स्ट्रैटेजिक पोजीशन को कवर करते हैं, 6 चैप्टर स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन को कवर करता है, और 7 चैप्टर स्ट्रैटेजी की 6 चैप्टर चॉइसेस को कवर करता है, और 7 चैप्टर इम्प्लीमेंटेशन को कवर करता है। तो ये पहले 7 चैप्टर्स जो हैं ये आपका स्ट्रेटिजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। सो दे कंप्लीट योर होल प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिजिक मैनेजमेंट। इसमें जो सबसे लेंथीएस्ट पोर्शन है वो पोजीशन एनालिसिस का है। वेयर डू वी करंटली स्टैंड, हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं, हमारी पोजीशन क्या है, एंड वेयर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, हम कहाँ जाना चाहते हैं। सो आपकी जो पोजीशन एनालिसिस होती है ये बेसिकली डिफ़ाइन करती है आपके करंट अचीवमेंट्स को, वेयर यू आर राइट नाउ, आपके गोल्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके ओवरऑल एम्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म एम्स क्या हैं, एंड देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू टू अचीव दोज एम्स। फिर आप स्ट्रैटेजीज़ क्या बनाएंगे, देन यू एंटर इनटू द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। फिर आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के प्रोसेस में आते हैं, विच इज़ योर 6th चैप्टर, एंड देन यू मूव अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज योर 7th चैप्टर। तो इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रैटेजी इज़ लाइक अ फंक्शन ऑफ 3 मेन एरियाज। इसमें आप स्ट्रक्चर के इश्यूज़ को देखते हैं, इसमें आप चेंज मैनेजमेंट करते हैं, इसके अंदर आप बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करते हैं। सो डिफरेंट एरियाज़ हैं जिसके थ्रू आप अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड इट देन कॉल्स फॉर द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिजिक मैनेजमेंट प्रोसेस।
So we will start with the first chapter. We will have an overarching view of the first chapter, and chapter by chapter we'll move on. और हर चैप्टर के अंदर हम तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे. नंबर 1, इम्पॉर्टेंट एरियाज़. नंबर 2, बाइफर्केशन ऑफ सिनेरियो बेस्ड एंड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. कौन कौन से एरियाज़ पेपर में सिनेरियो बेस्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से एरियाज़ एग्जामिनेशन में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. और उसके अलावा तीसरा एरिया जिसमें हम बात करेंगे दैट इज़ योर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, हाउ टू अटेम्प्ट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. आप कैसे क्वेश्चंस को इसमें अटेम्प्ट करेंगे. सो दैट इज़ something which we will be focusing on. Okay, so this is your study text here, and it calls for this is your study grid. 5 broad areas: strategy, formulation, implementation. Part A, strategy and management of IT. Part B, HR, supply chain and marketing, and CSR and ethics. And the weightage is given. One good thing is that ICAP precisely follows the grid. This is something important for you to learn and understand. Yours attempt is now going to be the 7th attempt of CFAP since winter 16. So for the last 3 years now, it's not even a single time it has happened कि एग्जामिनर ने ग्रिड को वायलेट किया हो. तो आपके सामने जो ग्रिड के टॉपिक्स हैं और जो उसकी वेटेज दी गई है आपको, दैट इज़ प्रिसाइजली followed in the examination. For example, if it says that part A is going to contribute about 35 to 40% to your examination, so be confident कि इतनी वेटेज आएगी पेपर के अंदर. If it says कि IT is going to contribute up to 15 to 20%, तो be confident कि ये 15 से 20 नंबर आएंगे पेपर में, क्योंकि ये एक जो ट्रेंड चलता आ रहा है फॉर द लास्ट 6 अटैम्प्ट्स वो यही है कि ग्रिड फॉलो की जा रही है. और ये एक खुशाइंद बात है स्टूडेंट के लिए भी कि बिकॉज द स्टूडेंट नोज कि इफ़ ही हैज़ प्रिपेयर्ड अ सर्टन टॉपिक कॉन्फिडेंटली प्रिसाइजली with complete command on that, तो वो स्टूडेंट जो है वो फिर कॉन्फिडेंट है कि वो उस एरिया में डेफिनेटली स्कोर कर लेगा या कर लेगी इन द एग्जामिनेशन. अब अगर आप इस ग्रिड के कंटेंट्स को थोड़ा सा बाइफरकेट करें तो आपके सामने कुछ की कंटेंट्स फिल्टर होके बाहर आते हैं. जैसे अगर पार्ट ए को देखा जाए तो पार्ट ए जो है इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर पहले 7 चैप्टर्स कवर होते हैं. और ये पहले 7 चैप्टर्स कमोबेश पेपर में 30 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं मिनिमम. ठीक है. आईटी को देखा जाए एक चैप्टर है 15 से 20 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, और एचआर को अगर आप देखें 3 चैप्टर्स हैं 15 से 20 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं. सो फॉर एग्जांपल दीज 11 चैप्टर्स कलेक्टिवली फॉर्म लाइक अराउंड 65 to 70% ऑफ द पेपर. ये 11 चैप्टर्स हैं किताब के, और ये आपके एग्जामिनेशन का ऑलमोस्ट 65 to 70% फॉर्मुलेट करते हैं. सो आई वुड से कि दिस इज़ द क्रक्स ऑफ योर प्रिपरेशन एंड द कंटेंट ऑफ द बुक. ठीक है, ये क्रक्स होना चाहिए आपकी तैयारी का भी. लाइक यू शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन प्रिपेयरिंग दीज एरियाज, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन the case based question, the knowledge based questions, the multiple aspects of the key content के मुख्तलिफ questions को different ways में कैसे आपसे पूछा जा सकता है. उसके बाद मार्केटिंग का जो एरिया है वो ज़रा किताब में थोड़ा सा वाइड स्प्रेड है. कुछ पोर्शन मार्केटिंग का स्ट्रेटजी में भी कवर हो रहा है लाइक इन द 3rd चैप्टर और इन द 5th चैप्टर एज वेल, और कुछ पोर्शन मार्केटिंग का जो है वो आपका कवर हो रहा है इन 8th चैप्टर 7 P's ऑफ मार्केटिंग में, और कुछ पोर्शन मार्केटिंग का आईटी के अंदर भी कवर हो रहा है ई मार्केटिंग के कंटेंट के अंदर. तो मार्केटिंग का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा स्कैटर्ड है किताब में,
you have to identify that which broad areas of the textbook are precisely focusing on the marketing content, और उसके हवाले से आपने फिर उसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है. अच्छा, पिछली 3 अटैम्प्ट से ये देखा गया है कि ऑपरेशंस का जो पोर्शन है ये बड़ा प्रिसाइजली टेस्ट हो रहा है. फॉर द लास्ट 3 अटैम्प्ट्स 9 चैप्टर, एक चैप्टर है और ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है क्योंकि यू आर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, और इसके बहुत सारे ऐसे एरियाज, बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जिसके अंदर शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे डेवलप ना हो पाए, लेकिन स्टिल एग्जामिनर जो है वो पिछली 2-3 अटैम्प्ट से इस एरिया को कवर कर रहा है. फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम एग्जामिनर ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे और जस्ट इन टाइम पे क्वेश्चन पुट किया था. उससे पीछे मूव करें तो एग्जामिनर ने इसमें से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एरिया एक्सप्लोर किया था. तो एग्जामिनर पिछली 2-3 अटैम्प्ट से इस एरिया को काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहा है, विच इज़ 9th चैप्टर, विच इज़ ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. बी प्रिसाइजली फोकस्ड ऑन दैट. एंड देन यू हैव CSR एंड एथिक्स. एथिक्स एंड CSR का जो कंटेंट है ये सिर्फ BM का पार्ट नहीं है, इनफैक्ट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स एज वेल. सो आई डोंट थिंक कि एथिक्स एंड CSR में कोई बहुत दुश्वारी आनी चाहिए. आइडियली एथिक्स और CSR में से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है एथिक्स के पोर्शन में से, और CSR में से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आता है. एग्जामिनर माइट गिव अ सिचुएशन एंड माइट आस्क यू अबाउट के व्हाट टाइप ऑफ एथिकल कॉन्फ्लिक्ट is being faced in the given situation, or a question might be there के how ethical safeguards can be applied. आप कैसे different safeguards को apply कर सकते हैं उस conflict को resolve करने के लिए. तो इस तरह का question भी आता होता है. So we will start our debate rightly from the first chapter. हम first chapter से अपनी debate start करेंगे and precisely we will be skimming through the content. हम skim करेंगे contents को. In the meantime, if you have any question, you are most welcome to ask regarding a particular topic or a particular content clarity. My focus would be on the flow of the topics, number 1, the degree of importance each topic hold, number 2, and what type of questions have already appeared from a particular topic in the past papers, and what type of question might be expected from this topic. Okay? So we'll start with the word strategy. स्ट्रैटेजी एक बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. स्ट्रैटेजी का जो ईजीएस्ट फिनोमेना है वो ये है दैट इज़ टू अचीव अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट अलाउज अस टू अचीव अ गोल. ये स्ट्रैटेजी होती है. अब इस लफ्ज़ को मुख्तलिफ वेज़ में डिफ़ाइन किया गया है. रिमेंबर एग्जामिनर वुड नेवर आस्क यू दैट हाउ शैंडलर डिफाइंड स्ट्रैटेजी. एग्जामिनर वुड नेवर आस्क यू दैट हाउ पीटर ड्रगर डिफाइंड स्ट्रैटेजी, हाउ हेनरी मिन्सबर्ग डिफाइंड स्ट्रैटेजी. एग्जामिनर आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि लेट्स से शैंडलर ने कैसे डिफ़ाइन किया था स्ट्रैटेजी को, और ड्रकर ने कैसे डिफ़ाइन किया था स्ट्रैटेजी को, और जॉनसन एंड स्कोल्स ने कैसे डिफ़ाइन किया था स्ट्रैटेजी को. बट एक ओवर आर्किंग व्यू स्ट्रैटेजी का आपके माइंड में होना चाहिए कॉम्प्रीहेंसिवली कि स्ट्रैटेजी का जो फिनोमेना है वो किन किन एस्पेक्ट्स को कवर करता है, व्हाट आर द की एरियाज़. फॉर एग्जांपल शैंडलर के मुताबिक स्ट्रैटेजी इन क्वेश्चंस के आंसर करती है. इसी तरह ड्रकर के मुताबिक स्ट्रैटेजी के जो कि एरियाज़ हैं वो चेंज हो जाते हैं. Similarly, these are the broader set of questions that are answered by this word strategy defined by an organization. एक इदारे की जो स्ट्रैटेजी होती है वो इन एरियाज़ को इन क्वेश्चंस को आंसर करती है. So that is again you have to be very careful between two different things. Number one, what is the commentary in your textbook. Commentary क्या है आपकी textbook की. Commentary से मुराद है कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं. And what are the contents which are precisely going to be catering your memory, जिनको मेमोराइज़ करना है आपने, या जिन कीवर्ड्स को आपने जहन में रखना है, और वो कीवर्ड जहन में रखे बगैर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर सकते. एग्जामिनर BM के अंदर कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा आपसे कि आप वर्ड टू वर्ड रिप्रोड्यूस करें टॉपिक को, ठीक है. हाँ, लेकिन कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. आपने कीवर्ड स्पेसिफिक होकर पढ़ना है. फॉर एग्जांपल अगर आप जॉनसन एंड स्कोल्स की डेफिनेशन देखें स्ट्रैटेजी की, तो इसके कीवर्ड्स क्या हैं. इसका पहला कीवर्ड है डायरेक्शन एंड स्कोप. दूसरा कीवर्ड क्या है, लॉन्ग टर्म. तीसरा कीवर्ड क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज. चौथा कीवर्ड क्या है, रिसोर्स एंड कॉम्पिटेंस. ये कीवर्ड्स हैं इसके. अगर आप डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रैटेजी को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जॉनसन एंड स्कोल्स, सो यू कैन नॉट स्किप दीज कीवर्ड्स. और फिर आप इन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए जिस तरह मर्ज़ी से फ्रेम कर लें अपने आंसर को, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है, वो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा. यू विल बी ग्रेडेड फुली इन दैट क्वेश्चन. ठीक है ना, आप उसके अंदर आपको उसका फुल ग्रेड अवार्ड होगा. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ कमेंट्री एंड व्हाट इज़ कंटेंट. कमेंट्री और कंटेंट में डिफ्रेंशिएट करना इस किताब में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है.
लाइक वाइल यू आर रिवाइजिंग द एरियाज यू शुड बी वेरी मच केयरफुल कि आपने किन चीज़ों को मेमोराइज़ करना है, जहन में बिठाना है, और किन चीज़ों को आपने गो थ्रू करना है, समझना है, उसका एक फ्लो समझना है और कीवर्ड्स को मेमोराइज़ करना है, सो दैट यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस इफ़ अ क्वेश्चन अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम दैट एरिया. दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये अपेयर हो चुका है पेपर में. लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी, 3 लेवल्स होते हैं स्ट्रैटेजी के. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है, बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है, फंक्शनल स्ट्रैटेजी होती है. देयर आर 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजीज़. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी टॉप लेवल स्ट्रैटेजी होती है. इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करते हैं. फॉर एग्जांपल यू आंसर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस लाइक पर्पस क्या है एंटिटी का स्कोप क्या है, फॉर एग्जांपल उसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसी है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इदारे ने कैसे अपने आप को कोप करना है, और क्या चैलेंजेस हैं एनवायरनमेंट से जिनको ओवरकम करना है. सो दीज आर सम ऑफ द ब्रॉड एरियाज विच आर एड्रेस्ड इन दिस पर्टिकुलर लेवल. देन देयर इज़ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के अंदर ओनर्स और स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस को भी आप डिस्कस करते हैं कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर. देन यू हैव बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी. बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी भी कहलाती है. एक बिज़नेस, एक ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स होते हैं जिन्हें SBUs कहते हैं, डिवीजन्स भी कह सकते हैं. तो बिजनेस यूनिट के अंदर फिर आपका जो मेन एरिया होता है स्ट्रैटेजी का, दैट इज़ व्हाट प्रोडक्ट लाइन्स शुड बी ऑफर्ड. फॉर एग्जांपल हाउ टू लीड ईच बिजनेस यूनिट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन. ये SBU लेवल स्ट्रैटेजी होती है. माइकल पोर्टर का एक मॉडल आपने पढ़ा होगा, उसका यहाँ पे रेफरेंस भी दे रहा है. लाइक दिस माइकल पोर्टर्स मॉडल इज़ अ बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रैटेजी, दैट इज़ अ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी. देन यू हैव फंक्शनल डिपार्टमेंटल स्ट्रैटेजी. फंक्शंस कहते हैं बिजनेस के स्पेसिफिक एरियाज़ को जहाँ पे अलाइक एक्टिविटीज़ आप एग्जीक्यूट करते हैं. सो दे आर ऑल्सो द डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस, इनको डिपार्टमेंट्स भी कहते हैं. तो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी जो होती है आपकी, दैट इज़ वेयर द बिजनेस फंक्शंस are consolidated in terms of cost, in terms of price, in terms of production levels, capacity. प्रोडक्शन के अपनी स्ट्रैटेजी होगी, मार्केटिंग की अपनी स्ट्रैटेजी होगी, HR की अपनी स्ट्रैटेजी होगी, सारी आपकी फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज़ हैं. फॉर एग्जांपल ये मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी है एक बिज़नेस की, विच इज़ प्रोडक्शन लेवल स्ट्रैटेजी, जिसमें कॉस्ट के इशूज़ हैं, क्वालिटी के इशूज़ हैं, डिलीवरी के इशूज़ हैं. सो दीज आर. इसी तरह HR की अपनी स्ट्रैटेजी है विच विल टॉक अबाउट रिक्रूटमेंट इशूज़ क्या हैं, ट्रेनिंग इशूज़ क्या हैं, डेवलपमेंटल इशूज़ क्या हैं. मार्केटिंग की अपनी स्ट्रैटेजी होगी, ब्रांड इशूज़ क्या हैं फॉर एग्जांपल. तो ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट फंक्शन लेवल स्ट्रैटेजीज़. दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट अपीयर्ड इन अ पर्टिकुलर अटेम्प्ट, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इट्स अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस. ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जामिनेशन के अंदर. एग्जामिनर ने एक आई गेस 10 या 12 मार्क्स के क्वेश्चन में एक कॉम्प्रीहेंसिवली पूछा था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस होता क्या है और व्हाट की एरियाज एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक अप इन मैनेजिंग देयर स्ट्रैटेजी. तो इसके 3 की पिलर्स होते हैं, पोजीशन, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन. एंड इनफैक्ट आपके जो अगले 7 चैप्टर्स तक जो कंटेंट है वो इन्हीं 3 पिलर्स को इनकैप्सुलेट कर रहा है. द कंटेंट राइटली फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड, स्टेक होल्डर्स से लेकर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन तक 7 चैप्टर, स्ट्रक्चर, चेंज मैनेजमेंट तक, वो सारे का सारा आपका इसी एरिया को इनकैप्सुलेट कर रहा है. सो पोजीशन का मतलब होता है वेयर यू करंटली आर, आपका मिशन क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपकी एनवायरनमेंट कैसी है, आपकी कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं. इनफैक्ट ये जो की एरियाज़ हैं ये आगे आपके चैप्टर्स हैं पूरे. फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट पे यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंटेंट इन 2nd एंड 3rd चैप्टर. ठीक है. इसी तरह स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी के ऊपर आप बात करेंगे 4th चैप्टर में. 5th चैप्टर इज़ ऑल अबाउट कोर कॉम्पिटेंस एंड कंपैरेटिव एडवांटेज. एंड एक्सपेक्टेशन एंड पर्पसेस ऑफ स्टेक होल्डर ये 1st चैप्टर के अंदर ही कवर हो रहा है. तो ये बेसिकली एक आप समझ लें एक ओवर आर्किंग व्यू दिया गया आपको कि पूरी स्ट्रैटेजी के प्रोसेस में होता क्या है. तो ये एक कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन ऑलरेडी अपेयर हो चुका है इस कंटेंट में से, इस एरिया में से, जिसके ऊपर एग्जामिनर ने पूछा था कि इनफैक्ट द अटेम्प्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज, लेट मी शो यू द अटेम्प्ट. क्वेश्चन की बल्कि साथ साथ अटेम्प्ट्स को भी ऑन कर लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस अटेम्प्ट में अपेयर हो चुका है. सो वी कैन हैव the attempts of the questions as well. So this was the question that was strategic management process. और ये आया था समर 16 में और समर 17 में भी आया था. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A था समर 17 में, CFAB अटैम्प्ट में,
और मॉड्यूल ई में ये क्वेश्चन समर 16 में आ चुका है। विंटर 16 ऑनवर्ड्स सी फैप अटैम्प्ट स्टार्ट हुई थी, ठीक है, यहाँ से ऑनवर्ड सी फैप है। ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आपके पास मल्टीपल सोर्सेज के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। तो ये एक बड़ा इनकैप्सुलेट कर देता है आपके सामने सारे पास्ट पेपर्स को, और उसके साथ साथ टॉपिक वाइज के कौन कौन सा टॉपिक किस किस अटैम्प्ट में अपेयर हो चुका है। वैसे बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन तो ये वाला क्वेश्चन अपेयर हुआ था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। इसी तरह लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस यूनिट लेवल, ये विंटर 16 में आया था। ये वाला टॉपिक भी आ चुका है पेपर के अंदर, विंटर 16 की अटैम्प्ट में आया था। सो एनवायरनमेंट क्या होती है, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी क्या होती है, एक्सपेक्टेशंस एंड पर्पसेस ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड द एंटिटी, ये तमाम चीज़ें आपकी कवर होती हैं स्ट्रेटेजिक पोजीशन के अंदर। चॉइसेस टॉक्स अबाउट व्हाट बिजनेस शुड डू बेस्ड ऑन देयर constraints that they have identified from their environment and their resources. Basically strategic position analysis का एक आउटकम होता है and that is SWOT analysis, और उस SWOT की बेस के ऊपर आप ये डिटर्मिन करते हैं कि आप अपने resources को कैसे मैनेज करेंगे based on the information you had earlier to come up with the best possible strategy. रिमेंबर कॉन्स्ट्रेंट्स हर इदारे के अंदर पाए जाते हैं। वो कॉन्स्ट्रेंट उनकी एनवायरनमेंट ड्रिवन हो सकते हैं या वो कॉन्स्ट्रेंट्स उनके रिसोर्स ड्रिवन हो सकते हैं। जब आप एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं तो आपको एनवायरनमेंटल ड्रिवन कॉन्स्ट्रेंट्स पता लगते हैं और एनवायरनमेंटल ड्रिवन अपॉर्चुनिटीज़ का पता लगता है। और जब आप इंटरनल एनालिसिस करते हैं तो आपको रिसोर्स ड्रिवन स्ट्रेंथ का पता लगता है या आपको रिसोर्स ड्रिवन वीकनेसेस का पता लगता है। सो चार चीज़ें सामने आती हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल क्या हैं और आपके थ्रेट्स क्या क्या हैं। एंड बेस्ड ऑन दीज 4 ब्रॉड एरियाज़ आप फिर अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करते हैं। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं जिन्हें हम चॉइसेस का नाम देते हैं, और ये तीनों लेवल पे होती हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे भी होती हैं, बिजनेस लेवल पे भी होती हैं और फंक्शनल लेवल पे भी होती हैं। आपकी जो बुक ज़्यादा फोकस करती है वो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज़ पे करती है। आवर टेक्स्ट बुक फोकस इज़ मोर ऑन बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज़, ठीक है। एंड देन वी हैव स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में how organization organizes itself, this is organizational structure, 7th chapter. How an organization makes its enables itself to achieve a certain goal, and how an organization manages change को कैसे मैनेज करती है। तो ये 3 एरियाज़ जो हैं ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो फर्स्ट चैप्टर एक तो आपको ओवर आर्किंग व्यू दे देता है इस पूरे प्रोसेस का। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस पूरे प्रोसेस में भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट कर ले, और ये भी मुमकिन सूरत हाल हो सकती है कि एग्जामिनर इसके किसी एक एरिया को पकड़ के उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पुट करे, ठीक है। सो नाउ वी बिगिन विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। उसमें जो सबसे पहला पिलर है वो है आपकी पोजीशन एनालिसिस। उसमें सबसे पहला काम जो आप करते हैं, यू अंडरस्टैंड व्हाट योर गोल्स आर एंड व्हाट योर ऑब्जेक्टिव्स आर। हायरार्की क्या है आपके गोल और आपके ऑब्जेक्टिव्स की, वो आपके ब्रॉडर गोल्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपका मिशन विजन क्या है। मिशन विजन पे भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है मल्टीपल टाइम्स। एग्जामिनर ने मिशन पे भी क्वेश्चन पुट किया हुआ है, 2 दफ़ा पुट किया हुआ है। मिशन स्टेटमेंट क्या होती है। अच्छा, मिशन का क्वेश्चन 2 तरह से आता है पेपर के अंदर, मेक श्योर। एक तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है जिस तरह लास्ट टाइम आया था रिसेंट पास्ट में। एग्जामिनर ने मिशन के पर्पसेस आपसे पूछ लिए थे। एग्जामिनर आस्क्ड अबाउट द की पर्पसेस ऑफ द मिशन स्टेटमेंट। और इसके अलावा एग्जामिनर ने एक दफ़ा क्वेश्चन पुट किया था, दैट वाज एक सिनेरियो दिया गया था और सिनेरियो दे के कहा था कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेटमेंट ड्रॉ करें, ठीक है। राइट डाउन अ मिशन स्टेटमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। तो हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स क्या होती हैं इदारे के अंदर, मिशन स्टेटमेंट किस क्वेश्चंस के आंसर देता है, विजन और मिशन का डिफरेंस क्या होता है, दैट इज़ वेरी सिंपल। रेलेवेंस और पर्पसेस क्या है मिशन स्टेटमेंट के, दिस वाज द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन लास्ट टाइम। पर्पस ऑफ मिशन स्टेटमेंट, मिशन के पर्पसेस क्या होते हैं, व्हाट पर्पसेस डज मिशन स्टेटमेंट सर्व। मिशन स्टेटमेंट से आप क्या पर्पसेस पूरे करते हैं। गोल ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट एरिया। देन स्टेक होल्डर का क्वेश्चन भी आई गेस अपेयर हो नहीं, अभी तक बीएम के कंटेंट में स्टेक होल्डर टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। स्टेक होल्डर का क्वेश्चन वाइडली अनटेस्टेड है सो फार। स्टेक होल्डर मैपिंग भी अनटेस्टेड है, मेंडेलो पीआई मैट्रिक्स, सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट एरिया। अनटेस्टेड एरियाज़ जो हैं आपकी किताब के, दे आर ऑटोमेटिकली एक्सपोज्ड टू द एग्जामिनेशन एट अ हायर लेवल। आपके पेपर के अंदर जो अनटेस्टेड एरियाज़ हैं उनका जो एक्सपोजर है पेपर में अपेयर होने का वो ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। बट इट डज़ नॉट मीन कि जो रिसेंट पास्ट में टॉपिक्स आ चुके हैं दे शुड बी इग्नोर्ड, ऐसा नहीं है। रिसेंट पास्ट के जो आपके टॉपिक्स हैं दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली दे आर इम्पॉर्टेंट। अपार्ट फ्राम दैट जो अपकमिंग एरियाज़ हैं
या जो अनटेस्टेड एरियाज़ हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेक होल्डर का एरिया जो है ये काफ़ी एक्सपोज्ड है टू द एग्जामिनेशन दिस टाइम एटलीस्ट इन December 19 कि इसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर सकता है, बिकॉज ये वाला एरिया अभी तक अनटेस्टेड है। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, और हाउ डू वी मैनेज स्टेक होल्डर्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टेक होल्डर मैपिंग, मेंडेलोस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, PI मैट्रिक्स। एक तरफ आप इंटरेस्ट रखते हैं और एक तरफ आप स्टेक होल्डर की पावर रखते हैं, और आप उसकी बेस पे 4 मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेक होल्डर ग्रुप्स को डेवलप करते हैं जिनको डिफरेंटली आप मैनेज करते हैं। मिनिमल एफर्ट, कीप इन्फॉर्म्ड, कीप सेटिस्फाइड, की प्लेयर्स। सो यू हैव वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स दैट नीड टू बी मैनेज डिफरेंटली इन अ डिफरेंट मैनर। तो स्टेक होल्डर मैपिंग का जो टॉपिक है ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीइंग अकाउंटेड फॉर। और इनफैक्ट कैफ लेवल पे तो ये वाला टॉपिक मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है, बट CFAP में अभी तक ये अनटेस्टेड है। इसके बाद आपके हाँ ये वाला क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, एटलीस्ट 2 दफ़ा तो आ चुका है। सिनेरियो बेस भी आ चुका है, नॉलेज बेस भी आ चुका है। इंटेंडेड और इमरजेंट स्ट्रैटेजी, दिस इज़ अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। समर 18 में आया था, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 2 पार्ट से, और ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन भी 2 दफ़ा पेयर हो चुका है पेपर में। इंटेंडेड स्ट्रैटेजी कहते हैं ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर आपका एक कंप्लीट थॉट प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए आपने खातिर खा प्लानिंग की होती है। आपके पास इसके बैक एंड पे एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव थॉट प्रोसेस होता है, बट इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट व्हाट यू थिंक यू विल डू द सेम। बहुत सारी चीज़ें रियल टाइम में चेंज होती हैं, जिसे इमर्जेंट कहते हैं। इमर्ज मीन्स उभरना, सामने आना। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी डिसाइड्स टू लॉन्च अ प्रोडक्ट एट लेट्स से 10 रुपीज़ पर यूनिट, and they anticipate that they will break even in 1 year, for example, if a certain level of sales are going to be generated. लेकिन जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो पता लगता है कि कंपेटिटर ने भी अलाइक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। अब क्या करेंगे, वॉट एवर चेंज दे विल ब्रिंग टू देयर स्ट्रैटेजी, या प्राइस कट करेंगे या मार्केट एक्सपेंशन करेंगे, व्हाट्सोएवर, ये इमर्जेंट स्ट्रैटेजी कहलाएगी। तो इमर्ज होने का मतलब होता है उभरना, सामने आना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, आई स्ट्रांगली एंडोर्स कि ये ज़रूर पढ़िएगा, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। एनफोर्स चॉइस कहते हैं कि जब एक स्ट्रैटेजी एक इदारे की मजबूरी बन जाए, जैसे एनफोर्स चॉइस कहते हैं। जैसे ई कॉमर्स, अब ई कॉमर्स जो है वो मजबूरी बनती जा रही है ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ये अब एनफोर्स चॉइस है कि यू कैन नॉट सर्वाइव इफ़ यू आर नॉट एबल टू ऑफर योर प्रोडक्ट टू बी सोल्ड ऑनलाइन। ठीक है, तो ये लेकिन जब आप किसी स्ट्रैटेजी को अपनी एनफोर्स चॉइस बना लेते हैं, सो दैट इज़ अ नेगेटिव थिंग एट द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ कंपैटिटिव एडवांटेज। देन ये फिर नेसेसरी इविल बन जाता है। मतलब बिज़नेस के अंदर स्ट्रैटेजीज़ के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है नेसेसरी इविल और एक होता है कंपैटिटिव एडवांटेज। नेसेसरी इविल का मतलब ये होता है कि ये तो करना ही करना है ना, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है, दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू डू। और एक होता है कंपैटिटिव एडवांटेज, समथिंग यूनिक यू आर ऑफरिंग विच अदर्स आर नॉट एबल टू ऑफर। जैसे एक गाड़ी के अंदर नेसेसरी इविल क्या है, गाड़ी में इंजन लगाना ही लगाना है, वरना गाड़ी नहीं चलेगी, ऑब्वियसली, फिर गाड़ी बिकेगी भी नहीं। तो इंजन की इंस्टॉलेशन गाड़ी के अंदर ये नेसेसरी इविल है ना, दैट इज़ समथिंग विच हैज़ टू बी देयर, otherwise you are not be able to sell your car, you are not be able to sell your car, you are not be able to attract the customer। तो ये necessary evil है। इसी तरह एक competitive advantage है आपका ब्रांड नेम, superiority in your quality, the design of the product, ये सारे आपके competitive advantages हैं। तो enforced choice कहते हैं necessary evil को, when everybody is doing something you also have to do the same, तो ये आपके लिए necessary evil बन जाता है, जो कि एक weak management strategy होती है। So it's not possible और इट्स नॉट लाइक द केस कि आप इसे अपनी किसी भी स्ट्रैटेजी को आप अपनी एनफोर्स चॉइस बनाएं। फ्यूचर बेसिंग का टॉपिक अभी तक अनटेस्टेड है, इट इज़ रिलेटिवली अ न्यूअर आइडिया। फ्यूचर बेसिंग कहते हैं कि आप अपने आप को फ्यूचर में प्लेस करके अपने माइलस्टोन्स को सेट करते हैं, और फिर आप अपने उन माइलस्टोन्स की बेस के ऊपर रियलिटी चेक्स लगाते हैं कि आपने क्या क्या अचीव कर लिया है और क्या क्या अचीव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ कंपेलिंग विजन ऑफ द फ्यूचर, आप एक फ्यूचर का विजन रखते हैं, उस विजन की बेस के ऊपर फिर आप अपने माइलस्टोन्स को सेट करते हैं, और फिर उसकी बेस के ऊपर आप रियलिटी चेक्स को एंडोर्स करते हैं। रियलिटी चेक से मुराद है करंटली क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और क्या और रिसोर्सेज जनरेट करने हैं अपने उस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। दैट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनटेस्टेड सो फार, चांसेस आर देयर कि एग्जामिनर फ्यूचर बेसिंग पे क्वेश्चन पुट करे। सो ये जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी स्टेजेस से मुराद है उसकी जो 3 ब्रॉड स्टेजेस हैं, पोजीशन, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन, और फिर हर स्टेज के अंदर वेरियस एलिमेंट्स हैं। अब ये देखें, इस तरह का सवाल जो है ना वो प्योरली ड्रिवन होता है मार्क्स एलोकेटेड के ऊपर। आप चाहें तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के ऊपर 3 घंटे स्पेंड कर सकते हैं पेपर में,
एक क्वेश्चन के ऊपर, इतना कंटेंट उसमें लिखने के लिए आपके पास. बट इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन हाउ मच मार्क्स आर बीइंग एलोकेटेड टू ड्रॉ द बाउंड्री, एंड फॉर दैट रीज़न पास्ट पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बेंचमार्क. कि आप पास्ट पेपर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है इस प्रोसेस में से तो कितना कंटेंट इसमें मुझे पुट करना चाहिए. दैट्स वाई आई ऑलवेज़ एंडोर्स टू द स्टूडेंट्स के पास्ट पेपर्स को ज़रूर रिव्यू किया करें और उसके मार्क्स एलोकेटेड की बेस के ऊपर उसका जो सोल्यूशन है उसको भी एड्रेस करके देखा करें कि कितना कंटेंट कवर किया था उसमें एग्जामिनर ने बेस्ड ऑन द मार्क्स एलोकेटेड. ठीक है, तो आई बिलीव कि अगर 10-12 मार्क्स का क्वेश्चन अपेयर होता है इसमें तो फिर आपको कम से कम उसके एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन ज़रूर करना है विद 1 लाइनर ईच. पोजीशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एनवायरनमेंट है, कैपेबिलिटी है, स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन और पर्पसेस हैं, इनको एक एक लाइन में आप ब्रीफ कर सकते हैं. चॉइसेस के अंदर आप आगे फर्दर बता सकते हैं कौन कौन सी चॉइसेस अवेलेबल हैं, उनको आप एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं. गेटिंग द पॉइंट. सेकेंड चैप्टर इज़ ऑल अबाउट एनवायरनमेंट. सेकेंड और थर्ड चैप्टर जो हैं अब ये एनवायरनमेंट के ऊपर है. एनवायरनमेंट के बिजनेस में 2 लेवल्स होते हैं, एक होती है मैक्रो एनवायरनमेंट और एक होती है मार्केट और इंडस्ट्री लेवल एनवायरनमेंट. देयर आर 2 ब्रॉड लेवल्स ऑफ एनवायरनमेंट, मैक्रो एंड इंडस्ट्री और मार्केट. मैक्रो एनवायरनमेंट इज़ द ब्रॉडेस्ट एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस, जो कि नॉर्मली जोग्राफिकल लेवल पे होती है, कंट्री लेवल पे होती है. इसमें 2 इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, पेस्टल एनालिसिस और माइकल पोर्टर डायमंड मॉडल. और इंटरेस्टिंगली अभी तक दोनों मॉडल्स पेपर में अनटेस्टेड हैं. अभी तक दोनों मॉडल्स एग्जामिनेशन के अंदर अनटेस्टेड हैं, एटलीस्ट इन द सी फैप. यहाँ से आगे सी फैप स्टार्ट हो रही है. ठीक है, सी फैप में दोनों मॉडल्स अनटेस्टेड हैं. तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. यू माइट बी गिवन अ केस स्टडी 2-3 पैराग्राफ्स और आपसे कहा जाए कि इसके ऊपर पेस्टल अप्लाई करें और आइडेंटिफाई करें पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन से हैं, सोशल फैक्टर्स कौन से हैं, डेमोग्राफिक्स, सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स. तो सारे के सारे 6 के 6 फैक्टर्स आपको आइडेंटिफाई करने को कहे जा सकते हैं. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. डायमंड या पोर्टर 5-4 ये पेस्टल, डायमंड या पेस्टल दोनों में से जब भी क्वेश्चन आएगा सिनेरियो बेस्ड ही आएगा, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से. whenever you are going to have a question from this particular topic it's going to be a scenario based question. पेस्टल में से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बनता नहीं है. एग्जामिनर आपसे कभी भी ये नहीं कहेगा कि इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते कौन कौन से हैं, या पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स होते कौन कौन से हैं, या फॉर एग्जांपल सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं. हाँ, किसी एक गिवन सिचुएशन के ऊपर आपको इसको इम्प्लीमेंट करने को कहा जा सकता है. यू माइट बी आस्क्ड टू इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर मॉडल ऑन अ गिवन सिचुएशन टू एक्सट्रैक्ट द पॉलिटिकल फैक्टर्स, टू एक्सट्रैक्ट द सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स. इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे. एंड द सेम गोज़ फॉर डायमंड. डायमंड मॉडल एक बड़ा स्पेसिफिक मॉडल है जो इंडस्ट्री की ओवरऑल कंपैरेटिव एडवांटेज को मैयर करता है कि कोई एक इंडस्ट्री जो है वो क्या किसी कंट्री में होम इंडस्ट्री के लेवल पे ऑपरेट कर रही है, और अगर कर रही है तो क्या उस इंडस्ट्री में एंटर हो के किसी बिजनेस को नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल हो सकता है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क, माइकल पोर्टर डायमंड मॉडल कहते हैं. इसका पर्पस क्या है? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, किसी भी फ्रेमवर्क को चूज़ करते हुए उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए. एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 2 तरह से आ सकते हैं. एक क्वेश्चन ये होता है कि आपको फ्रेमवर्क का नाम दे के कहा जाता है कि इन द लाइट ऑफ दिस फ्रेमवर्क इवेलुएट द फॉलोइंग सिनेरियो और कम अप विद सर्टन स्ट्रैटेजीज. जैसे फॉर एग्जांपल 5th चैप्टर में स्ट्रैटेजी क्लॉक मॉडल है. लास्ट टाइम या उससे लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी क्लॉक मॉडल का क्वेश्चन आया था कि एक सिनेरियो दिया गया था और कहा गया था कि स्ट्रैटेजी क्लॉक मॉडल की लाइट में उसके अंदर रहते हुए, उसके स्कोप में रहते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज़ रिकमेंड करें इस कंपनी को. अच्छा, एक तर्ज क्वेश्चन का ये भी होता है कि आपको सिनेरियो दे दिया जाता है लेकिन आपको फ्रेमवर्क या मॉडल का नाम नहीं बताया जाता. आपसे कहा जाता है यूज़ अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क, ठीक है, टू इवेलुएट XYZ कंपनी और व्हाट्सोएवर द इशूज़ आर. दैट इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. अभी तक पास पेपर में हार्डली 1 या 2 ऐसे एविडेंसेस मौजूद हैं जिसमें अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क का वर्ड यूज़ कर दिया और ये नहीं बताया कि फ्रेमवर्क यूज़ कौन सा करना है. जैसे एंड्स ऑफ मैट्रिक्स है 6th चैप्टर में, एंड्स ऑफ ग्रिड है 6th चैप्टर के अंदर. अब एक बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है और कहा जाए कि यूज़ अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क टू रिकमेंड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज द फर्म में यूज़. ठीक है, अब आपको वो क्वेश्चन ड्राइव करेगा और आपको पर्पस ऑफ द मॉडल ड्राइव करेगा कि इसका पर्पस क्या था और मैंने इसको यूज़ कैसे करना है. तो आपके पास हर फ्रेमवर्क का एक पर्पस क्लियर होना चाहिए. पेस्टल का पर्पस क्या होता है? ज्योग्राफिकल लेवल पे मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, ये पेस्टल का पर्पस होता है. डायमंड का पर्पस क्या होता है? नेशनल कंपैटिटिव एडवांटेज को इवैल्यूएट करना फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन अ पर्टिकुलर कंट्री, कि किसी एक कंट्री में किसी एक इंडस्ट्री को नेशनल कंपैटिटिव एडवांटेज हासिल है या नहीं है,
ये माइकल पोर्टर डायमंड का पर्पस है। इनफैक्ट आप अगर अपनी किताब का कंटेंट पढ़ें तो हर एक का पर्पस जो है वो उसने बड़ा क्लियरली मेंशन किया, और उसने साथ साथ आपको ये भी बताया हुआ है कि इसका एग्ज़ाम फोकस क्या हो सकता है, इसका एग्ज़ाम फोकस जो है वो क्या हो सकता है। इफ़ यू लुक एट वेरियस एरियाज़, ये लाइक दिस, ये कमेंट ऑलमोस्ट हर फ्रेमवर्क में दिया गया है। ये बड़े इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं। हम नॉर्मली बुक रीडिंग को बहुत इन डेप्थ शायद नहीं करते, तो हम ये शायद अक्सर स्टूडेंट ये इस तरह के कमेंट्स जो हैं वो सिंपली ओवरलुक कर जाते हैं। दीज टाइप्स ऑफ कमेंट्स आर गिवन इन एवरी मॉडल, कि आपसे एग्जामिनेशन में क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं इस क्वेश्चन के हवाले से या इस टॉपिक के हवाले से। उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि पेस्टल वुड बी एनालाइज्ड टू इवैल्यूएट अ सर्टन केस स्टडी और अ सर्टन सिनेरियो। ठीक है, किसी ना किसी केस या सिनेरियो को इवैल्यूएट करने के लिए आपसे पेस्टल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो पेस्टल एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। इसी तरह डायमंड है। डायमंड का पर्पस क्या है, माइकल पोर्टर डायमंड जो इसका पर्पस क्या है, और किस तरह से डोमेस्टिक मार्केट कंपैटिटिव एडवांटेज क्रिएट करती हैं ग्लोबल स्केल के ऊपर। सो दिस इज़ हाउ माइकल पोर्टर डायमंड्स इज़ इवैल्यूएटेड। और डायमंड में भी उसने आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपका किस तरह से पेपर में अपेयर हो सकता है। सो ये in your examination you may be required the theory of diamond to explain the global success of company in a particular company। तो डायमंड का पर्पस क्या है, डायमंड बेसिकली फोकसेस ऑन कि एक इंडस्ट्री एक मुल्क में क्यों कामयाब हो जाती है। जैसे पाकिस्तान में, अब तो खैर नहीं, लेकिन कभी 8 से 15 साल पहले पाकिस्तान में टेक्सटाइल क्यों कामयाब थी, वो कौन से फैक्टर्स थे, डिमांड कंडीशंस, फैक्टर कंडीशंस, फॉर एग्जांपल सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ फॉर एग्जांपल, एंड स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं जिसकी बेस पे किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को किसी एक मुल्क की होम इंडस्ट्री का दर्जा हासिल हो जाता है। इसे कहते हैं नेशनल कंपैटिटिव एडवांटेज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क। ये दोनों मॉडल्स अभी तक अनटेस्टेड हैं एग्ज़ाम में, सो चांसेस आर देयर कि एग्जामिनर आपसे इनके ऊपर क्वेश्चंस पुट करे। WTO एक क्विक नोट है, जस्ट रिव्यू के लिए है। सो ये पहला जो लेवल है ये मैक्रो एनवायरनमेंट का है। मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर कंट्री लेवल एनवायरनमेंट की बात करते हैं हम, वी टॉक अबाउट कंट्री लेवल एनवायरनमेंट, और उसको इवैल्यूएट करने के 2 मॉडल्स हैं, पेस्टल है और डायमंड है। इसी तरह अगला जो लेवल है एनवायरनमेंट का, दैट इज़ मार्केट और इंडस्ट्री लेवल एनवायरनमेंट। इंडस्ट्री क्या होती है, मार्केट क्या होती है, ये डिबेट इंपॉर्टेंट है। मार्केट को एनालाइज करने के टूल्स कौन से हैं, इंडस्ट्री को एनालाइज करने के टूल्स कौन से हैं। ठीक है, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल किसे कहते हैं, लाइफ साइकिल का टॉपिक 2 दफ़ा आ चुका है पेपर में। 5 फोर्सेस का जो मॉडल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 फोर्सेस भी आई गेस टेस्ट हुआ है पेपर में। 5 फोर्सेस मॉडल जो है, येस, ये भी रिसेंटली टेस्ट हुआ है, लास्ट अटेम्प्ट में हुआ है, समर 19 में टेस्ट हुआ है। ठीक है ना। तो पहले तो मार्केट का और इंडस्ट्री का डिफरेंस समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री कहते हैं बेसिकली कलेक्शन ऑफ अलाइक ऑर्गेनाइजेशंस और लाइक कंपनीज दैट प्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, टू सेटिस्फाई अ सिमिलर नीड, इस इंडस्ट्री कहते हैं। मार्केट बेसिकली कस्टमर ड्रिवन होती है, इंडस्ट्री कंपनीज ड्रिवन होती है। ठीक है, इंडस्ट्री सप्लाई फोकस्ड होती है, मार्केट डिमांड फोकस्ड होती है। तो ये एक बड़ा बुनियादी सा फ़र्क है इंडस्ट्री में और मार्केट में। सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहले इंडस्ट्री को डिफाइन करेंगे। इंडस्ट्री में और सेक्टर में क्या फ़र्क होता है। नॉर्मली सेक्टर जो है ये सर्विस ड्रिवन होते हैं, इंडस्ट्रीज़ जो है ये मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन होती हैं। अगेन ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट। जैसे हम एजुकेशन सेक्टर का वर्ड यूज़ करते हैं, बैंकिंग सेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये चूँकि सर्विस एरियाज़ हैं तो इनके लिए हम सेक्टर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ जो हैं दे आर प्रीडोमिनेंटली मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज़। लेकिन अगेन आप इट डजेंट मीन कि आप एजुकेशन इंडस्ट्री नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन एक आप समझ लें कॉमन नोशन डेवलप हो चुकी है कि इंडस्ट्री का वर्ड मैन्युफैक्चरिंग के साथ एसोसिएट कर देते हैं और सेक्टर का वर्ड हम सर्विसेज के साथ एसोसिएट कर देते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ वेरी क्लियर डिफरेंस। इन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, मैं ख्याल ये वाला क्वेश्चन भी शायद टेस्ट हुआ है पेपर में, माइट बी वंस। इंडस्ट्री की टाइप्स, हाँ ये यहाँ पे टेस्ट हुआ है एग्जैक्टली, है जी। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री के ऊपर एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन आया था। टाइप्स आर इंपॉर्टेंट। कन्वर्जेंस व्हेन 2 इंडस्ट्रीज कम टुगेदर एंड मेक देयर प्रोडक्ट्स कॉम्प्लीमेंट्री, इसे कन्वर्जेंस कहते हैं। कन्वर्जेंस 2 किस्म की होती है, डिमांड लेड होती है, सप्लाई लेड होती है। अगर कस्टमर डिमांड करे 2 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट टू बी ऑफर्ड पैरेलली, तो ये डिमांड लेड कन्वर्जेंस है। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, जैसे ये आपके ट्रैवल एंड टूर पैकेजेस होते हैं,
दैट इज़ डिमांड लेड कन्वर्जेंस। अब ट्रैवल एंड टूर पैकेजेस के अंदर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ कन्वर्ज हो रही है ना, इसके अंदर आपकी ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ भी है, इसके अंदर आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी है, ठीक है।